May I request Mrs. Arundhati Bhagwat to honor one more guest, senior guest who is there with us, Mrs. Priya Alpeji. She is Mrs. Avanti ma'am's mother. She herself is a retired teacher, so she belongs to our family. I'd just like to give you a brief introduction about Srimati Avanti Sandeep Kulkarni ji, and would like to just inform you that we had such a great personality amongst us, and about her achievements, about her art form. Avanti is a celebrated Warli artist, Warli art evangelist, teacher, visualizer, designer, and voiceover artist. You might have seen there are some voiceover artists. If a documentary is there, if a movie is there, there is some person who dubs the voice. So she is very good at it. She has that one more quality which is their hidden quality in her. Avanti works extensively on applying traditional Warli art for various modern objectives like designing theme-based Warli wall paintings on a large scale, visualizing Warli art illustrations for organizations, vision, mission, values, collaterals, and other specific requirements. Avanti believes that people with no art background can also experience the joy of creation with Warli art. It is a stress buster. You can just be free from the stress if you do Warli art. Even people like me should learn this. So it is a stress buster in an ever-increasing hectic lifestyle. Avanti conducts various Warli workshops for corporates, focused groups of art enthusiasts, professionals, special kids, and her students in India and abroad. She writes and speaks at various forums on Warli art and its promotion globally. She focuses on handmade creative artifacts for taking a unique collection to the art admirers. She specializes in visualizing and designing traditional handmade Warli paintings on various media like fabric, which includes sari, dress material, scarf. The sari which she is wearing today, she has painted it on her own. There is art form, that is Warli art form on her sari, beautifully painted. Wall, canvas, clay pots, lanterns, papers, frames, and other art creations. Her designs and handmade creations are popular in India and abroad. Avanti and her artwork have been featured on digital and print media in documentaries, interviews, and articles. She has got the award for the best painting in the Indian Heritage category as a professional artist at the 7th State Art Competition and Exhibition arranged by Kala Vishwa Art Fest 2020. Avanti has long experience in doing voice-over projects in Marathi and Hindi languages. Avanti's notable voice-over contributions include Shri Gondawalekar Maharaj Pravachan reading, 371 episodes, 1800 plus minutes. Then Samato Foundation Stories, Haravela Mukkam Post, 10 episodes, 85 plus minutes. Voiceover for poems and articles, AK Studio, movie dubbing, e-learning projects, Miracles Films, dubbing for Marathi film, YouTube. Now Avanti takes a keen interest in music, painting, handicrafts, acting, voiceover, and various other art forms. She did her diploma in commercial arts from Pune. She is a trained stage artist from Progressive Dramatic Association, PDA. She has completed professional voiceover training from AK Studio, Pune. Avanti provides her voice for various projects like e-learning, documentaries, advertisements, corporate films, audio books, announcements, interactive voice response, IVR, audio invitations, podcasts, dubbing, etc. So we are very, very happy. We are very, very
thankful indeed, thankful to her for having come to the Mani Public School, for having taken up this project, and for having completed this Warli printing project at our school. Ma'am, we are thankful to you. Thank you so much. May I request Mr. Sandeep ji to come over here and speak few words. Jai Guru Bani. Thank you, ma'am, for such a heartwarming welcome and organizing this particular event, for appreciating the art being exhibited and done by Avanti here. I also am very thankful to Anindra ji for giving this opportunity to Avanti, because unless an artist gets an opportunity, it's very difficult, to showcase the art in front of everyone. So, on one side, art and artists are important, but people who give opportunity to showcase the art is also equally important. Otherwise, it's very difficult. If that media is not there, art cannot reach everyone. So, again, I'm very, very thankful to the entire management of Mani Public School. It's been a really emotional and touching moments for us, staying here. Once you enter your school premises, it gives a different level of peace. You are inside and then you see that there is a different world inside this world when you come inside the school. I have never seen a place like this wherein I traveled globally, more than 25 countries, and then visited many schools and institutions across the globe. But the way everything is conducted here has certain vision behind it, certain thought behind it, and the way students are engaged right from, I think, 5 o'clock, when you get up at 5 o'clock, right, till almost late night, something is always happening. ऐसा बोलते हैं कि खाली दिमाग में शैतान रहता है. So here, I think there is no space for that shaitan to enter, because from 5 o'clock to late night you are busy always. We are amazed to see from where this energy comes to you. And I think, thank you. I think this is nothing but coming from Mani Prabhuji's blessings and the teachings which are there inherited till today. When I saw established 1972, I was amazed to see that this kind of institution at this large scale has started 50 years ago. And you are in the, I think, Golden Jubilee celebration year, and then various activities are happening. I really don't have words, because it's so emotional being here, and the way you all received as a family. My daughter Sai was here, and she was connected to so many of you. I think almost everyone knows her. And then everyone calls her Sai Devi, and then they today also, like, they don't miss calling her on WhatsApp video, and then they really enjoy it. And I could see all of them crying when she went from here, and then even Sai is still today crying. She said, why I went there. And she said that if she were aware a few years back that such school is there with such a lovely people, she must have 100%, she must have taken admission here, and then she could have studied here. And I'm sure that's the same feeling every one of you have, because the way everything is taught here, not just education, but when I go out and see institutions wherein all institutions are like just one building with a small ground in front of them. Even Sai's and Adi's school is like one building with small ground attached to it. In bigger cities, it's very difficult. But here, when I see, along with the school, with such a beautifully landscaped garden, lighting, such a big hall, such a wonderfully done sports facilities, wherein you have a full-size cricket stadium, a cricket ground, and the pavilion is under construction. I was told that this ground is bigger than Wankhede Stadium, or the Firozshah Kotla Stadium. So I'll not be surprised if very soon IPL matches being conducted here. I'm sure that it will start with the regional tournaments, and then it will go on. So
You have full-size football ground. You have full-size, the running athletics track is getting constructed. You have like almost half Olympic size swimming pool here. You go through the meditation activities and so on. Like the list is unending. The way you are actually, getting exposed to all these things, and believe me, you might not be realizing the value today, but when you go out and get exposed in the outside world, every day you will miss the school. Every day you will remember that what this school has given to you. That's amazing. Today you may be feeling that okay, since morning till evening we are always busy and doing so many things. But when you go outside, you will crave to come back here, and then again miss the school so much, so that you feel coming back to this place again and again. I'll not take much of your time. I once again thank all of you for giving so much of love. You are standing there talking to us, appreciating that. And that was really, really tears in my eyes. Thank you again. Thank you so much, sir, for expressing your views, your experiences at the Mani Public School. We are indeed thankful to you, sir. He is supporting her. Actually, he is not a Warli artist. He has his own, job. He is doing some other job, and he is assisting his wife. He is encouraging his wife to take up such projects. And Avanti ma'am may be really, she is the luckiest person to have such a partner. May I request Avanti ma'am to please come over here and speak few words for us. जय गुरुवाणी। थोड़ा मुझे टेंशन हो रहा है आपके सामने बात करते हुए, क्योंकि इतना सब कुछ प्यार, इतना सब सुनने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ थोड़ा सा। पहले तो सभी मान्यवरों उनके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। एक तो मुझे यहाँ पे माणिक पब्लिक स्कूल में वारली पेंटिंग करने के लिए उन्होंने जो मौका दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको, क्योंकि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता कि यहाँ के कुछ काम करे, क्योंकि यहाँ का प्यार ही अलग है, यहाँ के लोग ही अलग हैं, और ये प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। जो स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में भी संदीप जी ने कहा, वो सब हमारे सब लोगों की वही फीलिंग्स है जो उन्होंने बताई। मैं अभी वो नहीं दोहराना चाहती हूँ। मैं एक मराठी कविता आपके सामने छोटी सी है पेश करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा वारली के बारे में बताऊंगी। मराठी के ख्यातनाम कवि हैं बाभ बोरकर, उनकी एक कविता। प्रति एक झाडा माडा त्याची त्याची रूप कळा, प्रति एक पाना फुला त्याचा त्याचा तोंड वळा, असो पाखरू मासोळी जीव जीवार मुंगळी, प्रत्येकाची तेव ठेव काही आगळी वेगळी, असो ढग असो नग त्याची अद्भुत रेखणी, जी जी उगवे चांदणी तिच्या परीने देखणी, उठे फुटे जी जी लाट तिचा अपूर्वच घाट, फुटे मिटे जी जी वाट तिचा अद्वितीय घाट, भेटे जे जे त्यात भरे अशी लावण्याची जत्रा, भाग्य केवळ आपुले चाले ह्यातूनच यात्रा। इसका मीनिंग है, इस जग में जिसने भी जन्म लिया है, जो हर एक आत्मा है, जो हर एक सोल है, वो अलग है, जो यूनिक है। हर एक के पास एक एक ऐसी क्वालिटी है जिसको आप जतन करके आप आगे जाके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जो कुछ अपनी क्वालिटी है उस पे ध्यान दो, उसके ऊपर काम करो और आप सक्सेसफुल बनो। जो भी अभी आपको सिखाया जा रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि यह सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसका हम क्यों इसके लिए हम क्यों स्टडी करें,
ये हमारे पसंद का नहीं है, लेकिन आप आगे जाके जब देखोगे तो हर एक चीज़ की आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ती है और हर एक चीज़ आपको आगे जाके यूज़फुल होती है। ड्राइंग के बारे में बता दिया जाए तो कभी कभी लगता है कि सब लोगों को ड्राइंग निकालना या ड्राइंग की हॉबी होनी ही चाहिए, ऐसे नहीं, होती भी नहीं है। लेकिन हर विचार जो अपने मन में आते हैं वो हर विचार बोले नहीं जाते, व्यक्त किए नहीं जाते, अंदर रह जाते हैं। तो वो अंदर रहने वाले जो विचार है, वो जो थॉट्स है, वो ड्राइंग के जरिए बाहर निकलते हैं। तो जब भी आप ऐसा सोचो कि ड्राइंग हमें कंपलसरी क्यों है, तो ऐसा मत सोचिए। ड्राइंग हमेशा निकालते रहो, जैसा होता है। कुछ टेढ़ी लाइंस होगी, कुछ शेप्स अलग होंगे, लेकिन ड्राइंग्स निकालते रहो आप, क्योंकि उसमें से आपकी जो कभी कभी निगेटिव थॉट्स भी होते हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं हम, लेकिन उस ड्राइंग में से वो सब अपने फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। इसीलिए ड्राइंग करना ज़रूरी है। अभी मैं जो वारली पेंटिंग कर रही हूँ, इस वारली पेंटिंग का जन्म हुआ है महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डहाणू तालुके में। उन लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए इस कला का निर्माण किया। और ये कला देखी जाए तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन फिगर जो है वो एक सर्कल, 2 ट्रायंगल्स और लाइंस में बनी है। इसका मीनिंग ऐसे होता है कि जो ह्यूमन फिगर्स निकालना है या और कोई भी उसमें से ड्राइंग आप देखा जाए तो इन चीज़ों में बटी है कि सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सन और मून, ये नेचर में से आया है। और ट्रायंगल्स वो है पर्वत का रिप्रेजेंटेशन, और लाइंस जो है पेड़ हैं। तो नेचर में से कोई कितनी भी चीज़ें लेके हम जितना सिंप्लिसिटी से वारली का रिप्रेजेंटेशन करें उतना अच्छा दिखता है। तो इसीलिए उन्होंने सिंपल जो अपने आकार होते हैं उसमें से वारली की फिगर तैयार की है, और पूरा ड्राइंग उसी में ट्रायंगल्स और सर्कल से ही बना हुआ है। तो अगर किसी को ड्राइंग नहीं भी आता हो तो इसकी प्रैक्टिस करके भी अच्छा सा ड्राइंग हम निकाल सकते हैं और अच्छी क्रिएटिविटी से हमें आनंद मिल सकता है। अभी ये वारली पेंटिंग होने के बाद हम कुछ दिनों में ही इसी वारली पेंटिंग पे वर्कशॉप लेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी और फिर आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल है और फिर तैयार होने के बाद हमें कितना अच्छा लगता है। अभी आज आखिरी दिन है, कल हम यहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन निकलते समय बहुत इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ का सब प्यार, यहाँ के आप लोगों से हुई बातचीत, और जितने दिन रही हूँ उतने दिन इतना प्यार मिला है और इतनी अटैच हो गई हूँ आप सबसे, सब छोटे बच्चों से लेकर सभी बड़ों तक बहुत प्यार दिया है, और ये बाहर कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही प्यार मेरे ऊपर बना रहे, इतनी ही विनती। हाँ, उस थीम के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। 4 हिस्सों में बटी है अपनी वारली की थीम। ऊपर के हिस्से में जो बना है वो तोरण है। जो भी अपने घर में कभी कभी त्योहार होते हैं, मांगल्य का प्रतीक है तोरण, तो त्योहार होते हैं या अच्छा कुछ प्रोग्राम होता है तो हम घर पे तोरण लगाते हैं। तो अपना ये जो स्कूल है यहाँ तो हर दिन त्योहार है, हर दिन अच्छे कुछ ना कुछ अपने यहाँ आप सीख लेते हो, कुछ ना कुछ होता है यहाँ पे चीज़ें, तो इसके लिए वो तोरण है। दूसरे लेयर में जो बना है, जो अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होती है वो वारली के स्वरूप में दिखाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो जो सभी एक्टिविटीज़ है वो वारली कल्चर में नहीं होती, लेकिन हमने वो वारली की फिगर लेके इस एक्टिविटी के हिसाब से वो वहाँ के सब आइकॉन्स बनाए हैं। तो वो स्विमिंग होगा, हॉर्स राइडिंग है, आर्ट है, ड्रामा है, ये सब 18 एक्टिविटीज़ वहाँ पे दिखाई गई है। नीचे के हिस्से में
आपने देखा होगा कि दो साइड में दो सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। वो जो सर्कल्स हैं वो डांस कर रहे हैं सब लोग। वो कौन सा डांस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं तारपा डांस। तारपा डांस क्यों? क्योंकि तारपा नाम का एक वाद्य है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो वहां पे तैयार किया जाता है। वारली के वो जो क्षेत्र है वहां पे वो तैयार किया जाता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट लेके बीच वाला जो एक पर्सन है वो बीच में वो तारपा लेके खड़ा है और बाकी के सब लोग उसके आजू बाजू में डांस कर रहे हैं। लेकिन उसका एक ऐसा वैशिष्ट्य है कि वो जो सर्कल है वो ओपन है, ओपन एंडेड है। हम कभी भी गरबा करते हैं या कोई भी चीज का सेलिब्रेशन करते हैं तो सर्कल कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। लेकिन वारली संस्कृति का वो सर्कल क्लोज नहीं है। इसका मीनिंग ऐसा है कि उनके संस्कृति में या उनके समाज में कोई नया आए तो वो उनका स्वागत करके उनको अपने में समा लेते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हर जगह पे अभी आपने जैसे हम लोगों को इतने अच्छे से स्वीकार किया कि हमें लगने लगा कि हम आपके यानी इसी परिवार से हैं, दूसरे हम दूर से आए हैं ऐसे लगा ही नहीं। यही क्वालिटी है उनकी। तो वहां पे जब भी डांस होता है तो इसी तरीके से होता है और वो उनका कल्चर दिखाता है और वो बहुत फेमस है उनके कल्चर के लिए। इसीलिए साइड में वो सर्कल्स लिए हैं और उसके बाजू में राइट साइड के दीवार पे आप देखेंगे तो पॉटरी का सब दिखाया हुआ है कि पॉटरी कैसे बनाई जाती है। वो क्यों दिखाया है वहां पे? क्योंकि पॉटरी यानी वो जो एक मटका तैयार करते हैं उसमें क्या क्या होता है, पहले मिट्टी लाते हैं, फिर पानी लाते हैं, वो भिगोते हैं, उसको एक आकार दिया जाता है, फिर उसको सेका जाता है और फिर वो चेक करते हैं कि ठीक से हुआ है या नहीं, और फिर वो बाहर के जग में चला जाता है उसका काम करने के लिए। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट ऐसे ही बनता है। आप छोटे छोटे होते हैं तब यहाँ पे आते हैं, आपको अच्छी तरह से आकार दिया जाता है, आपको संस्कार दिए जाते हैं, अच्छा क्या बुरा क्या ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। बाहर के जग में जाने के लिए आपके एग्जाम्स लेते हैं, वही सीखना है, आपको तैयार करते हैं, आप अच्छे से तैयार हुए हो या नहीं, और फिर आपको बाहर भेज दिया जाता है कि चलो बच्चों आप तैयार हुए हो, अभी बाहर के जग में जाके आपको काम करना है। ये पॉटरी में दिखाया जाता है। और लेफ्ट साइड के वॉल में दिखाया है कि वो टोकरी का मेकिंग कैसे करते हैं। बाम्बू से छिलके निकालते हैं और छिलके से फिर टोकरी बनाई जाती है। एक प्रोसेस है उसकी, जैसे एक कोई भी चीज बनने के लिए उसको हर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वही आपकी चल रही है अलग अलग तरीके से। इसीलिए वहां पे टोकरी मेकिंग दिखाया है। नीचे के साइड में दोनों साइड में पेड़ दिखाए हैं। पेड़ का तो आपको मालूम ही है, आपके पूरे इस एरिया में इतने अच्छे से और इतने रसिकता से पेड़ लगाए हैं, फूलों के पौधे हो या बाकी के पौधे हो, ये बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के जितना पौधे यहाँ पे लगाए हैं वो उसका रिप्रेजेंटेशन है। और नीचे वारली संस्कृति का वहाँ पे हमने आपको वो एक डिजाइन बनाया है कि उनके यहाँ डेली रूटीन उनका क्या होता है, सुबह उठ के क्या करते हैं, फिर दोपहर को क्या होता है, वहाँ पे खेती कैसी होती है। हाँ, वहाँ पे राइस ज्यादा तैयार होता है, ज्यादा यानी उनका जो क्वांटिटी होती है तो वो बहुत होती है। इसीलिए उनका कलर भी ऐसा है कि ब्राउन कलर के ऊपर व्हाइट से पेंटिंग, क्योंकि पुराने जमाने में सिर्फ राइस का फ्लावर ही उनके पास रहता था, उस वक्त कलर नहीं थे। तो जंगल में जाके वो जो जंगल में पेड़ होते हैं जहाँ से वो गम मिलता है, वो गम लेके उसमें से राइस का फ्लावर उसमें डाल के वो अपने दीवार के ऊपर अपने मनोरंजन के लिए ये पेंटिंग बनाते थे। इसीलिए ऑथेंटिक पेंटिंग इन दो रंगों से ही बनता है, इस ब्राउन के ऊपर व्हाइट या व्हाइट के ऊपर ब्राउन। इसीलिए हमारे यहाँ इस दीवार पे ब्राउन के ऊपर व्हाइट लगाया है। बहुत लोगों को क्योंकि ये क्यूरियोसिटी थी कि ये दो रंगों में ही क्यों होता है। देखिए, सिंपलिसिटी में ज्यादा ग्रेस होता है। वैसे यहाँ पे वारली में सिंपल उन्होंने ट्रायंगल और सर्कल लिया है,
और सिर्फ 2 रंगों में उन्होंने वो बांट दिया है, लेकिन उससे भी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा, अच्छे तरीके से किया, तो उसमें भी एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और ऐसा इसको मैंने मराठी में नाम दिया था संस्कृति और जडणघडण। इसका मीनिंग है, यहाँ पे इस ड्राइंग में कल्चर भी है और बच्चों को जैसे तैयार किया जाता है, जडणघडण होती है उनकी, वो इस संस्कृति में इस ड्राइंग में दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपके स्कूल का एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो अभी मैं आपसे रजा लेना चाहूंगी। मुझे मेरे बोलने में बहुत सारी गलतियां हो गई हो तो आप सब लोग माफ कर देना। जय गुरु महाराज। Madam, please. नाही आता next time. We'll divert from it. Thank you. Oh, sure. I wanted to thank a few people personally because I thought ऐसा होता है ना कि आप आपका जॉब करते हो, बट आप आपका जॉब कैसे करते हो उसके ऊपर आपका इम्प्रेशन बनता है। आपका अलग से लोग आपको याद रखते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ हम लोग जब आए तो राइट फ्रॉम उसका अरेंजमेंट इनिशियली करना था, तो हमारे काफ़ी बात आनंद राज जी से, चारू दत्त से होती थी, और उन्होंने शुरू से हमें इतना कंफर्टेबल किया कि यहाँ पे सारा इंतजाम किया है अच्छे से और आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद हम जितने लोगों से मिले सबसे हमें उसी लेवल का प्यार मिला और उतना ही अच्छा डे टू डे बेसिस पर मुझे बात करते थे, बहुत अच्छा लगता। तो मैं स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ कि ये सब करने के लिए जो एनर्जी लगती है फूड की, तो उसके लिए सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना और 2 बार चाय, ये टाइम टू टाइम हमें अवेलेबल होता था। और जब हम मेस में जाते थे तो सत्यवती मैडम का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि लाइक अ मदर